Students, how are you all? Welcome to our online videos classes, and this video is for class 8th students, which I have already as you know, I am Ravi and I am dealing your math subject, and we have started already the rational number first chapter. और मैंने एक वीडियो इसमें अपलोड कर दिया है. I have uploaded the very first video for the rational number, and let us proceed into the topic further, and let us see what is the yes, in the previous video, as you know, what did I discuss you with you about the closure property, what is rational number, and very basic definition, very basic introduction about the rational number, which I already discussed. And about closure property also I told you. Closure property, okay, property about the रेशनल नंबर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है किसमें, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या क्या होता है. यहाँ पे ये क्लोज होता है रेशनल नंबर्स, ये भी क्लोज होता है. यहाँ पे ये क्लोज नहीं होता है इन केस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो, अगर डिवाइड बाई जीरो, जीरो इज़ अ रेशनल नंबर, सिंस जीरो इज़ अ रेशनल नंबर, डिवाइड बाई जीरो इज़ नॉट डिफाइंड, hence rational numbers are not closed under the division. सो ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ. सो अगर आपको, जो लोग भी ये मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशनल नंबर चैप्टर, एंड लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, एंड यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर्स के, किसके, रेशनल नंबर्स के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे. एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव. अगर कोई यहाँ पे एक यहाँ पे नंबर है, रेशनल नंबर ए, दूसरा रेशनल नंबर बी है. ओके, सो व्हाट वी कैन से, ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा, क्या ये वैल्यू बी प्लस ए दोनों के वैल्यू क्या इक्वल होगा. अगर ये इक्वल होता है, देन व्हाट वी कैन से, दीज रेशनल नंबर which a and b, these rational number are commutative in addition. कि कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द टू रेशनल नंबर्स. ये ए क्या है, हमारा रेशनल नंबर है. बी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है. वी आर चेकिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अबाउट द रेशनल नंबर. सो लेट अस डू वन थिंग. फर्स्ट I will erase everything here. Okay, everything I will erase so that we will get enough space to do something. Now here see, I am dealing with you commutative. Okay, commutative, okay, property of rational numbers. Don't worry, we will do problems also, but जो concepts है वो तो पहले सीख लेते हैं. एक बार concepts clear हो जाए से मैं आपको problems और examples भी clear करा दूंगा. So for that you no need to worry about that. और इसमें हम यहाँ पे addition, okay, यहाँ पे addition का देखेंगे, फिर यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे subtraction, and here we will see subtraction, and the third one here is multiplication यहाँ पे हम देखेंगे, और चौथा हम देखेंगे division also. So these are the four operation which we will see. यहाँ पे देखिए, अगर a एक रेशनल नंबर है और b another रेशनल नंबर है, अगर a equal to b plus a, in that case what we can say, a and b both are okay, sorry, these rational numbers are commutative. ये देखिए यहाँ पे सपोज a इक्वल टू, सपोज मैं 3/4 लेता हूँ, a इक्वल टू b इक्वल टू 2/3 लेता हूँ. सो लेट अस परफॉर्म a प्लस b, 3/4 2/3. what will happen here, 4 3 ja 12. okay, 4 3 ja 3 3 ja 9 plus 3 4 ja 4 2 ja 8. So what will we get here, 9 8 17/12. So this is the a plus b. Now let us calculate b plus a. Again 2/3 plus, okay, a
3 by 4, what will get? Again 3 4 is 12. Here we will get 8, 3 4 is 4 2 is 8 and 4 3 is 3 3 is 9. So हम यहाँ पे क्या आया? 17 by 12. Okay, so what we got? A plus B is equal to A plus B इक्वल हो गया B प्लस ए के. सो व्हाट वी कैन से, एडिशन में जो रेशनल नंबर होते हैं दे आर कम्यूटेटिव. ओके, दैट इज द रिजल्टेंट. So what we can say, addition is commutative for the rational number. So let us check what about the subtraction here. अगर यहाँ पे सपोज ये 3/4 b is equal to 2/3 and let us check perform a minus b. ओके, a माइनस बी, a इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3. और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा. यहाँ पे ये हो जाएगा 4 3 या 12 and 4 3 या 3 3 या 9 minus 3 4 या 4 2 या 8. So what we will get? 9 8, that is so we will get 1/12 a minus b. Let us check b minus a. b is equal to 2/3 minus 3/4. Okay, so 4 2 is 12 and here we will get 8 and minus 3 3 is 9. So यहाँ पे minus 1/12 we will get. So here a minus b is not equal to b minus a. a minus b not equal to b minus a आ गया. So what we can say? We can say a minus b is not equal to b minus a. So we can say rational numbers are not commutative in subtraction. What? Not commutative here in this case, यहाँ पे. So not commutative. Now let us check for the multiplication. यहाँ पे a into b, a का वैल्यू हमने क्या लिया था? 3/4. b वैल्यू हमने लिया था 2/3. So 3/4 into 2/3, 3 3 कैंसिल कर सकते हैं. 2 2 या 4, what will we get? Okay, 1/2. Now let us check b into a, sorry, 2/3 into 3/4. Again 3 3 cancel, 2 2 is 4. What will we get here? 1/2. So a into b equal to b into a. ये दोनों वैल्यू अभी क्या हमारे पास आ गया? a into b equal to b into a. So we can say rational numbers are commutative in multiplication. यहाँ पे सही है, ये गलत है. नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ पे कम्यूटेटिव और यहाँ पे भी कम्यूटेटिव है. यहाँ पे कम्यूटेटिव. नाउ व्हाट अबाउट द डिवीजन ऑपरेशन? ओके, फॉर दैट वी विल चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओके, ब्लू कर लेते हैं. ब्लू. सपोज a डिवाइड बाई b. a का वैल्यू हमारे पास 3/4 था, डिवाइड बाई b वैल्यू 2/3 था. ओके, सो 3 into 3, ओके 4 into 2. सो यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 2 जा 8. नाउ लेट अस डू b by a. b वैल्यू वी हैव 2/3 by 3/4. सो what value you get? 4 2 जा 8, 3 3 जा 9. Just opposite we are getting. So a by b is not equal to b by a. Okay, a by b is not equal to b by a. So not commutative in division. Rational number are not commutative. फर्स्ट मैं इसको कलर चेंज करके फिर इसको कैंसिल करता हूँ. ये नॉट कम्यूटेटिव. यू गॉट इट? सो यहाँ पे मैंने once again I will tell you here, we are checking the whether about the all the arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication and division. Okay, and we are learning the commutative property of commutative property of what? Rational numbers. commutative property of rational numbers. ये देखिए commutative property एक्चुअली होता क्या है? if a and b both are rational numbers, so उन दोनों का जो जोड़ होगा a plus b is equal to, अगर b plus a कर देते हैं और ये दोनों का वैल्यू सेम आता है, then what we can say? rational numbers are commutative in addition. when similarly अगर a minus b
अगर वैल्यू अगर आएगा b माइनस ए के तब तो होगा, लेकिन एक्चुअली होता है इसका अपोजिट है, a माइनस बी जो होता है वो नहीं होता है इक्वल किसके, b माइनस ए के। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे देखिए a माइनस बी का वैल्यू आया था 1/12 और b माइनस ए का वैल्यू आया था यहाँ पे -1/12। सो दिस इज़ नॉट इक्वल, सो दैट इज़ वाई व्हाट वी कैन से रेशनल नंबर्स आर not commutative under the subtraction. Similarly, what about the multiplication operation? If a equal to 3/4 and b equal to 2/3, so a into b that gives you 3/4 into 2/3, 3 cancel, 2 ja 4, 1/2. Similarly, b into a we get 1/2. So here a into b is equal to the b into a. So in this case, okay, these are equal, so hence rational number are commutative. Okay, rational numbers are commutative, so right sign here in multiplication. Similarly, in a division we can check 3/4 a value, b equal to 2/3, so 3/4 divided by ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2/3, और ये आपको मालूम है ना, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये बीच वाले दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। सो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो a बाई बी का वैल्यू 9/8 और b बाई ए का वैल्यू क्या आएगा 8/9। ओके, सो a by b is not equal to b by a, so we can say the rational numbers are not commutative in division also. Rational numbers are not commutative in subtraction, rational number are not commutative in division, rational number are commutative in addition. यहाँ पे addition में सही है, multiplication में सही है, subtraction में not commutative होता है, division में भी not commutative होता है। I think ये जो commutative property है सबका clear हो गया। So okay, we have the next property, that is the associativity. Okay, associative से हमारा associativity बना है। associative property of rational numbers. So this is the next subheading we have. Okay, so what already you have seen the closure property, next you have seen the commutative property, closure, commutative, and now let us see associative. Okay, so now अब ये अब कैसा रहता है, associative कैसा रहता होगा उसे हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये भी 4 ऑपरेशन पे ही होता है। पहला अगर देखेंगे हम एडिशन वाले केस में, एडिशन के केस में when a b c 3 rational numbers, so a okay plus b plus c, अगर ये वैल्यू a plus b okay plus c के इक्वल आ जाए, okay, if these two things are equal, then we can say rational numbers are associative. Okay, associative in okay addition. In addition, rational numbers, if a b c, okay, if a b c are the 3 rational numbers and a plus b plus c is equal to a plus b plus c, पहले इस दोनों को ऐड करके बाद में अगर ये ऐड करते हैं और यहाँ पे पहले b और c को ऐड करके बाद में उसमें a ऐड करते हैं, if these two values will be equal, then we can say rational numbers are associative in addition. Okay, for example, let us check one example here. Suppose a equal to -2/3, okay, b equal to 3/5 or c equal to -5/6. Okay, so now let us do that, a plus b plus c. So -2/3 plus b, that is the 3/5 plus c -5/6. ओके, सो ये माइनस में है। सो यहाँ पे मैं -2/3 को अभी तो ऐसे ही रख देता हूँ। 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 6 जा 6 3 जा 18, और ये प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 6 5 जा 5 5 जा 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -2/3 वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे हम गए -7/30। ओके, सो यहाँ पे हम 30 एलसीएम ले लेते हैं, 30 एलसीएम ले लेंगे। देन व्हाट विल वी गेट हियर, 10 -20 हो जाएगा ये, और ये -7 हो जाएगा। सो ये -27/30 हो जाएगी।
वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं a प्लस बी प्लस सी अगर ऐसे करता हूँ, इन दिस केस व्हाट वी कैन गेट, लेट अस चेक। -2/3 प्लस 3/5, पहले इन दोनों को ऐड करके बाद में हम उसमें -5/6 जो है वो ऐड किया जाएगा। सो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा -10 हो जाएगा ये, प्लस 5 3 5 जा 5 2 जा 5 3 जा 3 3 जा 9। सो इतना हो जाएगा, प्लस -5/6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1/15 -5/6, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 5, 3 जा 2, मतलब 3 5 जा 15, 2 जा 30, 30 होगा इन दिस केस। 2 -2 हो जाएगा ये, 6 5 जा 5 5 जा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। अगेन वी गेट -27/30। सो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? यहाँ पे देखो, मैंने कलर चेंज करके दिखलाता हूँ। यहाँ पे मैं लाया है -27/30 और ये वैल्यू भी -27/30। ये मैंने जो कैलकुलेट किया था a प्लस बी प्लस सी था, और ये जो मैंने कैलकुलेट a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी ऐड करके फिर मैंने a को ऐड किया था, यहाँ पे पहले a प्लस बी ऐड करके बाद में मैंने c को ऐड किया था, ये वाला इधर ऐड हुआ। सो यू गॉट इट, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। सो व्हेन आई टोल्ड यू व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ओके, अगर ऐसा केस ये सेटिस्फाइड हो जाता है, देन व्हाट वी कैन से रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन द एडिशन। सो व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी इन एडिशन? यहाँ पे एडिशन वाले केस में ये सही का मार्क हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन एडिशन। सो नाउ लेट अस चेक द रेशनल नंबर्स आर, क्या रेशनल नंबर एसोसिएटिव होते हैं सब्ट्रैक्शन में? ओके, सो ए के वैल्यू मैंने क्या लिया था, -2/3, बी वैल्यू मैंने लिया था 3/5 और सी वैल्यू मैंने लिया था -5/6। और मैं चेक कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हम पहले निकालते हैं a माइनस बी माइनस सी, यही है ना? यहाँ पे हमको चेक करना है a माइनस बी, ओके, माइनस सी, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा? सो क्या ये होगा? मैंने साइन ऑफ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। सो a माइनस बी माइनस सी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो a वैल्यू -2/3 और ये माइनस, और ये b वैल्यू 3/5 -5/6, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2/3 माइनस ये 3/5 और ये माइनस प्लस 5/6 हो जाएगा यहाँ पे। ये -2/3 माइनस ये 5 6 जा 30 हो जाएगा यहाँ पे, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 5 6 जा 6 3 जा 6 5 जा 5 5 जा 25 हो जाएगा। -2/3 माइनस और 18 5 25 कितना होता है, 8 5 13, 3 2 1 3 1 4, ओके, इतना हो जाएगा। सो ये -2 -43 कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, नीचे 30 एलसीएम होगा, और ये 3 10 जा 3 3 जा 30, 10 2 जा -20 -43। सो हाउ मच यू गॉट, 3 4 2 6, -63/30 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सिमिलरली जब आप a माइनस बी करके माइनस सी करेंगे, सो इस केस में आपको क्या क्या आएगा, -2/3 माइनस ऑफ 3/5 और फिर माइनस सी के वैल्यू -5/6, ऐसे है ना? ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 5 और 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 3 3 जा 9, ओके, ये हो जाएगा 5/6 प्लस में, ओके, -19/15 प्लस 5/6। अगेन इसका एलसीएम हमारे पास 30 हो जाएगा, ओके, यहाँ पे 2 जा 19 दूनी का 38, 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 3 5 15 30, ओके सॉरी, 15 2 जा 30, 19 2 जा -38, और ये पे साइन हो जाएगा प्लस 6 5 जा 5 5 जा 25।
सो 8 में से 5 3 गया और 3 में से 2 1 गया। सो ये साइन माइनस का होगा। सो ये हो गया इसका वैल्यू। सो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नो, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। ओके, a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी। ओके, एक मिनट, a माइनस बी ओके माइनस सी। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन से कि जो होता है कि रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव इन सब्ट्रैक्शन, नॉट एसोसिएटिव इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। नॉट एसोसिएटिव यहाँ पे आ गया। अब okay, the next arithmetic operation we have division and we are checking the associativity of the rational numbers। किसके? rational numbers के हम associativity चेक कर रहे हैं। एक मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, सो लेट अस डू दिस a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। b डिवाइड बाई c क्या कर सकते हैं? -1/3 डिवाइड बाई c 2/5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 इंटू 5/2 इंटू 3। और अब ए का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, नीचे क्या है? -1 इंटू 5 है और ये 2 इंटू 3 है। सो अब क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू ओके, ये ऊपर गया, 2 इंटू 5 हो जाएगा और एक साइन माइनस रह जाएगा। सो ये हो गया -3/5। ये वैल्यू हमारे पास -3/5 है। अब a डिवाइड बाई b। ओके, यहाँ पे मैंने a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c किया था। यहाँ पे मैं पहले ये a डिवाइड बाई b करा जाएगा। सो लेट अस डू -1/3 डिवाइड बाई b। b कितना है? 2 बाई यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे a कितना है? a 1/2 है, b कितना है? -1/3 है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? 3/2 माइनस में। अब ये इसके डिवाइड में मैं c करता हूँ। डिवाइड बाई c अगर किया जाए तो -3/2 डिवाइड बाई c की वैल्यू है 2/5। ठीक है, ये हो गया -3/5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, दैट इज़ -15/4 हो जाएगा। तो ये तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है। सो दैट इज़ वाई व्हाट वी कैन से, मतलब a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई ये c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b ओके डिवाइड बाई c। सो ये वाला जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं होगा। सो हेंस नॉट एसोसिएटिव। ओके, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन डिवीजन। यू गॉट इट? सो यहाँ पे हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, रेशनल नंबर्स मैंने स्टार्ट किया था आपको। और ये रेशनल नंबर्स में हमने पहले प्रॉपर्टी देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने देखा था कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव। ओके, और तीसरा प्रॉपर्टी हमने देख लिया था एसोसिएटिव। अभी हाल फिलहाल मैंने एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी दिखलाई। और अब चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।